Hello, good morning students. Welcome back. In today's video, we are going to learn about fourth generation computer and fifth generation computer. Okay. So I already told you about the second generation and third generation computers yesterday. So there is only one thing that is important in any generation, that is its computer's size day by day decreases, its speed increases, and its expenditure or whatever cost will required for developing computer, it reduce. Okay, so fourth generation computer, that is 4G. So the technology used in this generation is that medium scale integration, that is MSI. जैसे कि हमने थर्ड जनरेशन में भी एक टेक्नोलॉजी देखी थी, वो थी that is SSI, small scale integration, that is in third generation. उसके बाद आया है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. ये था आपका थर्ड जनरेशन का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. इस पे क्या कर रहे थे हम, जो भी ट्रांजिस्टर्स थे उसके ऊपर हम सेट कर रहे थे ऑन वन चिप. तो उसका रेंज था 10 to 15 ट्रांजिस्टर ऑन वन सिंगल चिप, 10 to 15. उसके बाद क्या हुआ, ये डेवलप हुआ इन फोर्थ जनरेशन. सो इट वाज पॉसिबल टू पुट हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स इनटू अ सिंगल चिप. 10 to 15 पे से ये जो आपका नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सेट करने का क्वांटिटी है 100 पे आ गया. Okay, in third generation it was 10 to 15, in fourth generation it was hundreds. So large scale integration, that is SLSI technology was developed and which is able to put 30,000 transistor on a chip. Okay, ये फोर्थ जनरेशन में ही हो रहा है. जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन डेवलप हुआ उसके बाद ए भी कम पड़ा, 100 हम ट्रांजिस्टर्स वहां पे सेट कर रहे थे ऑन अ सिंगल चिप, whereas it again overcome this problem and developed up to 30,000 transistors on a single chip. उसके बाद VLSI, that is very large scale integration, came and has put millions of transistors into a single chip, and nowadays we are using this technology called very large scale integrator. Okay, first था आपका small scale integration. Okay, then medium scale integration, उसके बाद आया large scale integration, and finally we are using this very large scale integration. What is the use of this? This is nothing but your microprocessor. Microprocessor word आपको आपने सुना होगा. So that microprocessor is used to control all the things of your computer. उसके बारे में हम देखेंगे. So next point is that these days computers are making use of very large scale integration technology. For example, microprocessor, which contains all the components of a CPU on a single chip. Okay, ये क्या करता है microprocessor? It controls all the things of your computer, like input output devices, its storage. Okay, जो भी आप devices उसको अटैच कर रहे हो, it executes instructions sequentially. जैसे कि आपने instructions दिए हैं किसी ऐप के ऊपर, आपने क्लिक किया है तो वो पहले ओपन होगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका जो भी है क्लोज करो या फिर कुछ ओपन करो, कुछ ड्रॉ करो, जो भी आप करते हो कंप्यूटर में या फिर मोबाइल पे, उस सबको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं. सो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इन अ सीक्वेंस. सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट. ओके, ये सीक्वेंस से ही एग्जीक्यूट होते हैं. माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन की मैं लिंक आपको देने वाली हूँ, आप देख लो.
सो मेन पर्पस माइक्रो प्रोसेसर का यही है विच कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स विच अटैच टू योर कंप्यूटर. सीपीयू पूरा हैंडल करता है माइक्रो प्रोसेसर. ओके, और जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इन 4th जनरेशन कंप्यूटर, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. इन फर्स्ट जनरेशन वी सॉ दैट इट वाज वैक्यूम ट्यूब्स, देन in second generation it was transistors, in third generation it was integrated circuits, then in fourth generation computer the technology is used microprocessor. जो फिलहाल हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर होता है. और फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे आपके? लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, मोबाइल्स है, ओके, स्मार्टफोन्स है. ये सब एग्जांपल्स है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट they have much greater computing power and storage capacity than the earlier. हर एक जनरेशन में होगा, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बोला था. उसका जो कंप्यूटिंग पावर है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ गई एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई है. फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल का देखो, पहले स्टोरेज कैपेसिटी 64 GB रहता था, अभी 128 हो गया है. They use improved storage devices that are cheaper than the earlier ones. Day by day इसका जो रेट है, जो प्राइस है, वो कम हो रहा है. They can be linked together in networking. ये हम फोर्थ जनरेशन का ही देख रहे हैं. What is the meaning of this network? It means that we can share storage, and devices. Okay, we can share. What is the meaning of this then? जैसे कि LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही ऑफिस में 10 पीसी है, 10 पीसी हमने LAN से कनेक्ट किए हैं. कौन से टेक्नोलॉजी से? LAN, दैट इज अ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क. तो ये आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे अटैच होते हैं और एक इसका एक सर्वर होता है. सो दैट सर्वर कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड बाय ऑल दिस यूजर्स. तो ये इसके ऊपर जो स्टोरेज है वो हम सब पार्टिसिपेंट, जो भी एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है, उनको हम दे रहे हैं, यानी कि वो शेयर हो रहा है, राइट. इन सब में शायद एक ही प्रिंटर हो, तो ये डिवाइस शेयरिंग हो गया. ये क्या है? डिवाइस शेयरिंग. और ये जो सर्वर है LAN का, वो है स्टोरेज शेयरिंग. ओके, सब लोग इस पे डेटा सेव करेंगे, सब लोग यहां से डेटा एक्सेस करेंगे एंड एवरीवन कैन सी अदर्स डेटा ऑन दिस सर्वर. तो सबके लिए एक्सेसिबल होगा. दैट इज अ शेयरिंग. जो भी मैंने सेव किया वो दूसरा भी एम्प्लॉय देख सकता है, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं. प्रिंटर, हर एक यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय, सब लोग प्रिंटर, एक ही प्रिंटर यूज करेंगे. सिर्फ उसको, उनको क्या करना है? वो इंस्ट्रक्शंस पास करने हैं प्रिंटर को. जिसका भी पहले आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस हिसाब से ये चलता है. जैसे कि यहाँ पे ABCDE 5 कंप्यूटर्स है. सो एम्प्लॉय B ने अगर कुछ ऑर्डर किया है प्रिंट के लिए, तो उसका वो क्यू में ऐड हो जाएगा B. उसके बाद C, A एंड D, ये क्यू है. तो फर्स्ट कौन आया? B. तो B का ही प्रिंट पहले आएगा. नेक्स्ट C, देन A, देन D. दिस इज द सीक्वेंस. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो ऐसे करके डिवाइस भी शेयर होते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या शेयर हुआ? आपका प्रिंटर. तो नेटवर्किंग का ये यूज होता है. वी कैन शेयर storage and devices or we can easily access data. Next point is that the major focus was of fourth generation on reducing size and improving efficiency. Okay, simple point है, reducing size and improving efficiency. ये जो main focus था. This resulted in smaller and faster computers. इसका रिजल्ट क्या है? आपको
साइज में कम कंप्यूटर्स आए जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स जो है वो फास्ट है। आपका लैपटॉप देख लो या डेस्कटॉप देख लो, एज कंपेयर टू अर्लियर्स इट इज वेरी फास्ट एंड चीपर। जो रेट भी है उनका कम हो गया है। सो ऑल दिस रिगार्डिंग योर 4th जनरेशन कंप्यूटर। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, उसको ही हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्स्ट ये आया था 3rd जनरेशन में, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, देन इट बिकेम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, then large scale integration, and nowadays we are using very large scale integration. What is the meaning of this? It means that on a single chip we can arrange how many transistors, that is about large scale में था 30,000 transistors. In very large scale we can put millions of transistors on a single chip. That's why its speed gets faster. Okay, 10 से 15 से लेके 100 आ गया, 100 से 30,000 आ गया. Now today we are using millions of transistor on a single chip. That is your microprocessor. Okay. So what is the drawback of 4th generation computer? ये तो हम यूज कर रहे हैं. The scientist wants that it should work like a human being. इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमें 5th जनरेशन कंप्यूटर में देखना है. फॉर एग्जाम्पल है रोबोट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.